Hello students, so we were learning about organelles of the cell. So today we will learn about lysosome. So lysosome was first observed by Christian de in 1955 accidentally. So पहले सबसे पहले उन्होंने observe किया था Christian de ने in 1955. Then it was observed under electron microscope by Novikov in 1956. So Novikov ने इनको ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर in 1956. Clear? Next we have what is a lysosome. So lysosome is a vesicle which is bounded by a single membrane contain hydrolytic enzymes in it. So what is a lysosome? Lysosome is a vesicle which is bounded by a single membrane. Single membrane से bound है और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड दीज एंजाइम्स आर इन क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल फॉर्म. सो जो ये एंजाइम्स प्रेजेंट है वो या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, और द साइज ऑफ दीज ग्रेन्यूल इज 5 to 8 nanometer. Clear? And in this lysosome there are 60 different types of enzymes are found. So इसमें 60 different types of enzymes are present in a lysosome and each lysosome has a definite set of enzyme. Okay, so एक जो lysosome है उसमें एक particular type के enzymes ही present है. ठीक है, in lysosomes 5 acid phosphates, 7 sulfates, 14 proteases and peptidases, 2 nucleases, 6 lipases and 13 glycosidase enzymes are discovered or found. Enzymes present in lysosome are also called as acid hydrolases because these all enzymes work in pH between 4 to 5. Okay, तो जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में उनको एसिड हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं. क्लियर? So these acidic conditions are maintained by proton pump in the lysosome. ठीक है, कि जो एसिडिक कंडीशंस हैं लाइसोसोम में वो किससे मेंटेन होती है? प्रोटॉन पंप से मेंटेन होती है जो कि एटीपी जनरेटेड होते हैं, जो कि एटीपी जनरेटेड होते हैं. क्लियर? Along with this, transport proteins are also present. So transport proteins भी present होते हैं in the membrane of lysosome for the passage of amino acid, sugars and nucleotides. So जो लाइसोसोम वेसिकल है, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. क्यों? फॉर द पैसेज ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इनटू द साइटोसोल. सो साइटोसोल में भेजने के लिए अमाइनो एसिड, शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम. क्लियर? So this membrane keep all the enzymes within the lysosome out of the content of the cellular material. So in this cell, if these are lysosome present, so जो इसकी membrane है वो क्या करेगी? जो इसके enzymes हैं that will be bounded by this membrane, so they will not in touch with the cytosol or the rest of the cytoplasm. Clear? Why this so? Because जो भी इसमें digestive enzymes हैं that all are so powerful they can digest anything in the cell. जो अगर वो इस मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएंगे तो वो पूरे के पूरे सेल को क्या कर देंगे? पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देंगे. ठीक है, so that is why they are bounded by the membrane. Clear? But a question arise, if these all enzymes are so powerful तो वो फिर इस लाइसोसोम को ही क्यों नहीं खत्म करते? ठीक है, so lysosome itself protected by glycosylation. So लाइसोसोम इन डिजेस्टिव एंजाइम से खुद को कैसे बचाता है? ग्लाइकोजाइलेशन प्रोसेस से. ठीक है, सो इन दीज एंजाइम्स ग्लाइकोजाइलेशन प्रोसेस अकर्स, सो दैट इज व्हाई द लाइसोसोम सेव इटसेल्फ फ्रॉम द डिजेस्टिव फंक्शन ऑफ द ऑल एंजाइम्स. क्लियर? सो इसलिए जो लाइसोसोम है वो खुद नहीं डाइजेस्ट होता, सिर्फ तभी डाइजेस्ट करेगा अगर वो सारे एंजाइम्स इसके बाहर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम विल बिकम फ्रेजाइल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी सेल में, देन दिस मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल और द लाइसोसोम विल बिकम फ्रेजाइल. ओके, और along with these other factors are if there is excess of vitamin A and E, hormones, bile salt
कार्सिनोजेंस, सिलिका, एस्बेस्टोस, क्लोरोक्विन और कोलेस्ट्रॉल. So if these all are present in the excess amount in the cell, then the membrane of the lysosome will become fragile. ठीक है. So उसके जो टूटने का खतरा ज्यादा हो जाता है अगर all these things are present in excess in the cell. Okay. So अगर तो ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी ये टूट जाएगी इसकी मेम्ब्रेन. ओके. अगर ये सभी एक्सेस में होंगे, विटामिन ए एंड ई, हार्मोन्स, बाइल साल्ट्स, कार्सिनोजेंस, सिलिका, एस्बेस्टोस, क्लोरोक्विन एंड कोलेस्ट्रॉल, तो तब भी ये जो है मेम्ब्रेन वो क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी. ठीक है. सो दैट इज व्हाई लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. अगर ये मेम्ब्रेन टूट गई तो ये पूरे का पूरा सेल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स. Done. Next we will do morphology of the lysosome. So lysosomes are highly heterogeneous, means they can be round to irregular shape. So वो round shape के भी हो सकते हैं, irregular shape के भी हो सकते हैं. So उनकी outline round to irregular हो सकती है. Clear है? Next is they are in 0.2 to 0.8 μm in diameter. So उनका डायमीटर कितना हो सकता है, 0.2 से लेके 0.8 म्यू तक. बट इन सम केसेस दे कैन बी ऑफ 5 म्यू एम, लाइक इन ल्यूकोसाइट्स. सो ल्यूकोसाइट्स में उनका डायमीटर अप टू 5 म्यू एम तक हो सकता है. क्लियर है? नेक्स्ट इज द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम इज मे बी लेस डेंसर. सो इसका इंटीरियर क्या है, लेस डेंस है. ठीक है. इज लेस डेंसर एज कंपेयर टू इट्स आउटर रीजन. सो आउटर रीजन इज मोर डेंस एज कंपेयर टू इनर रीजन. तो इनर रीजन कम डेंस है और साथ ही में इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो ग्रेन्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज इट्स अकरेंस. सो मेनली लाइसोसोम अकर इन ऑल एनिमल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज. सो आरबीसीज में लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. एंड इन फंजाई एंड अदर प्लांट्स the functions of lysosome is taken by vacuoles. So plants और fungi में क्या present होते हैं, vacuoles present होते हैं. ठीक है. So in animal cells except RBCs lysosomes are present and fungi और plants में क्या है, vacuoles present है जो क्या काम करते हैं, lysosome का काम करते हैं. Clear. Next is its origin. So mainly lysosomes are formed by collective work of endoplasmic reticulum and Golgi complex. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलके लाइसोसोम्स को बनाते हैं. ठीक है. सो जो प्रीकर्सर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का, दे आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कि जो स्टार्टिंग में हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनते हैं वो स्टार्टिंग कहां से होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्टिंग होती है. ठीक है. देन दीज प्रीकर्सर्स मूव टू द गोल्गी अपरेटस. क्लियर. सो जो ये प्रीकर्सर्स हैं देन दे मूव टू गोल्गी अपरेटस बाय द ट्रांजिशन वेसिकल्स. Clear. So next is in Golgi complex these precursors change into enzymes. So ये किस में बदल जाते हैं, एंजाइम्स में चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम precursors of enzymes are formed. ठीक है. सो वहां पे क्या बने, precursors of enzymes. Then these precursors of enzymes move to the Golgi apparatus. ठीक है, by transition vesicles. So in the Golgi apparatus, these enzymes, precursors of enzymes change into enzymes. So यहाँ पे क्या हो जाता है, एंजाइम में चेंज हो जाता है ये precursor. क्लियर है. Golgi apparatus में पहुंच के then in these enzymes mannose 6-phosphate tagged. So इसमें क्या मिल जाता है, mannose 6-phosphate मिल जाती है इन एंजाइम में in the Golgi apparatus. क्लियर. So ये दोनों मिलके एक वेसिकल में बदल जाते हैं. ठीक है. एंड दिस वेसिकल इज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस. सो क्या हुआ, गोल्गी अपरेटस में पहुंच के एंजाइम में कन्वर्ट हो गए प्रीकर्सर. नेक्स्ट जो मेनोज 6-फॉस्फेट थी वो इसके साथ मिलके एक वेसिकल में बन गया. ठीक है. और वेसिकल गोल्गी अपरेटस से बाहर निकल गया इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर. नेक्स्ट इज फिर जो ये वेसिकल है, सो दिस इज द वेसिकल विच इज ऑफ एंजाइम एंड मेनोज 6-फॉस्फेट. दिस वेसिकल इज joined with the endosome.
ठीक है। सो जो एंडोसाइटोसिस से एक स्ट्रक्चर आई है एंडोसोम, उसके साथ ये ज्वाइन करेगा एंड देन दीज बोथ टू विल कन्वर्ट इनटू लाइसोसोम, ठीक है। सो एंडोसोम एंड वेसिकल विल चेंज इनटू लाइसोसोम, क्लियर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, क्लियर। So this is the vesicle of newly formed lysosome. As more and more vesicle join these and this lysosome will become more bigger. क्लियर है कि जैसे जैसे वेसिकल्स इसमें ऐड होते जाते हैं सो दिस लाइसोसोम विल ग्रो इन द साइज। सो ये लाइसोसोम क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा साइज में। देन जो इस लाइसोसोम में मेनोज 6 फॉस्फेट था, वो क्या कर जाएगा, अब रिलीज कर जाएगा, ठीक है, इससे बाहर निकल जाएगा। सो देन These lysosome will be ready for the hydrolysis, ठीक है। जैसे ही इसमें से ये शुगर बाहर निकल गया then these lysosome will be ready for the hydrolysis process, और इसको हम अब क्या बोलेंगे, एक्टिव लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है, which is ready for the hydrolysis. So mainly अब जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है उसमें क्या प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। So these macromolecules will help in the digestion. So ये क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, क्लियर। सो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, जब गोल्गी अपरेटस से लाइसोसोम का वेसिकल निकला था, ठीक है, दिस इज नोन एज लाइसोसोमल वेसिकल। इसको क्या नाम दिया था, लाइसोसोमल वेसिकल का नाम दिया था, क्लियर। दिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम, इसको प्राइमरी लाइसोसोम भी बोलते हैं, जैसे ये गोल्गी अपरेटस से बाहर आ गया, ठीक है। देन दिस लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम विल जॉइन विद द एंडोसोम, ठीक है, जो लेट एंडोसोम के साथ जुड़ेगा उसके बाद। So then it will change into lysosome. So ये अब लाइसोसोम है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें से जो मेनोज 6 फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी एंड देन दिस विल बी रेडी फॉर द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। सो जो अब मेनोज 6 फॉस्फेट के बिना लाइसोसोम है, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। सो जो एक्चुअल में सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं। क्यों, बिकॉज दे ऑल आर द एक्टिव लाइसोसोम्स, क्योंकि उनमें से मेनोज 6 फॉस्फेट रिलीज कर जाता है एंड दे आर नाउ एक्टिव फॉर द हाइड्रोलिसिस, क्लियर। सो नेक्स्ट इज मेनली जो प्लाज्मा लेमा है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है। सो इससे क्या बनता है, एंडोसोम बनता है, विच इज जॉइंड विद द वेसिकल टू फॉर्म द लाइसोसोम, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या बना, दिस एंडोसोम बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है, कि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से प्लाज्मा लेमा से क्या बनता है, एंडोसोम बनता है, ठीक है। सो मेनली दिस एंडोसोम इज रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इसमें से इसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, दोबारा प्लाज्मा लेमा से बाहर चला जाता है, ठीक है, थ्रू एक्सोसाइटोसिस बाहर चला जाता है, ठीक है, रिलीज कर जाता है। देन दिस एंडोसोम इज कन्वर्टिंग इनटू लेट एंडोसोम, ओके। सो अब ये लेट एंडोसोम है। So this late endosome will join with the vesicle which is released from the Golgi apparatus and then converted into the lysosome, ठीक है। So mainly this endosome is of various shape and size, clear, और ये multivesicular भी हो सकता है। So these all are the characteristic of endosome, कि एक तो इसके बहुत सारे shapes and size हैं, दूसरा this is a multivesicular body। सो ये कौन सी बॉडी है, मल्टी वेसिकुलर बॉडी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो एंडोसोम की मेम्ब्रेन है, इट डेवलप सम प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, जो इसका मीडियम है वो क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। सो द मीडियम ऑफ दिस एंडोसोम इज एसिडिक, क्लियर। एंड मेनली जो इसका मीडियम एसिडिक कैसे होता है, थ्रू द प्रोटोन पंप। सो मेनली इस प्रोटोन पंप से इसका मीडियम एसिडिक होता है एंडोसोम का, क्लियर। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंडोसोम। सो इन द सेल दीज लाइसोसोम जर्नी डू नॉट बर्स्ट। सो होता क्या है कि जिस ऑर्गेनेल को इसने डिजेस्ट करना होता है या फिर खत्म करना होता है, सो दैट ऑर्गेनेली विल बी बाउंडेड बाय द वैक्यूल, ठीक है। सबसे पहले तो जिस भी ऑर्गेनेल को इसने खत्म करना है उसके अराउंड एक वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लाइसोसोम आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। सो ऑल दीज आर द लाइसोसोम्स विच आर अटैच्ड विद द बॉडी विच इज रेडी टू डिजेस्टेड, ठीक है, कि जो डिजेस्ट होने के लिए तैयार है। उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे टू डिजेस्ट दिस बॉडी, ओके। नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम। सो बेसिकली इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है, कि इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले है
प्राइमरी लाइसोसोम्स, देन सेकेंडरी लाइसोसोम, देन ऑटोफेजिक लाइसोसोम, एंड द लास्ट इज रेसिडुअल बॉडी। क्लियर? सो ये 4 टाइप्स थी लाइसोसोम की, बट इन अवर मॉडर्न मेथड दीज 2 आर डिस्कार्डेड। इसको हल कर दिया अब कि कौन कौन से टाइप के लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। सो अब 3 टाइप के लाइसोसोम्स हैं मेनली। सो फर्स्ट वन इज हेटेरोफेजिक, सेकंड टाइप इज ऑटोफेजिक, थर्ड टाइप इज रेसिडुअल बॉडी। So first of all, we are going to start with the heterophasic type of lysosomes. So in heterophasic type of lysosome, some extracellular material is present. So what is extracellular material? So extracellular material is the material which come from the outside. So जो सेल के बाहर से आ रहा है उसको हम extracellular material बोलेंगे, ठीक है। So इस extracellular material में मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Mainly these come in the cell by the receptor mediated endocytosis, ठीक है। So these macromolecules come inside the cell through the receptor mediated endocytosis. Clear? So सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होगा इस टाइप के लाइसोसोम में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। Clear? These macromolecules come inside the cell through the receptor mediated endocytosis. Clear? So this is the first thing. Next thing is कि कोई लार्ज पार्टिकुलेट मैटर या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फॉरेन सेल कम इनटू द सेल थ्रू द इंजेक्शन, ठीक है। कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर एंटर हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। सो देयर आर 2 थिंग्स बाय व्हिच एनी एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल विल कम इनसाइड द सेल। सो पहला है मैक्रोमोलिक्यूल्स आ सकते हैं थ्रू रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से, दूसरा है लार्ज पार्टिकुलेट मैटर्स या फिर फॉरेन सेल्स आ सकते हैं थ्रू द इंजेक्शन प्रोसेस। क्लियर? सो जो ये फॉरेन सेल्स अंदर आए हैं, ठीक है, देन दीज सेल्स विल चेंज इनटू अर्ली एंडोसोम। सो ये किस में चेंज हो जाएंगे, पहले अर्ली एंडोसोम में, उसके बाद किस में चेंज हो जाएंगे, लेट एंडोसोम में, ठीक है। सो लेट एंडोसोम में चेंज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली विल चेंज इनटू लाइसोसोम। क्लियर? सो जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं वो अर्ली एंडोसोम में, देन लेट एंडोसोम में एंड अल्टीमेटली विल चेंज इनटू लाइसोसोम। क्लियर? सो दिस इज द हेटेरोफेजिक टाइप ऑफ द लाइसोसोम जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो नाउ वी विल लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो लेट्स ड्रॉ अ सेल, ठीक है। सो एक सेल ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले कोई भी पार्टिकुलेट या फिर फॉरेन सेल विल कम इनसाइड दी सेल, ओके। कि कोई फॉरेन पार्टिकल क्या कर रहा है, सेल के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड देन दिस थिंग इज कवर्ड बाय दी मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। सो ये चीज उसके बाद बंद हो जाएगी लाइक इन अमीबा, जैसे उसमें फूड वैक्यूल बनता है। देन दिस विल चेंज इनटू दिस थिंग एंड दिस इज नोन एज फेगोसाइटिक वैक्यूल, ठीक है। कि सबसे पहले इज ऑल आर द फॉरेन पार्टिकल्स विच आर कमिंग टू द सेल, जो सेल के अंदर आ रहे हैं। देन उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन जनरेट होगी, ठीक है, और ये क्या बन गया, एक फेगोसाइटिक वैक्यूल बन गया, ठीक है। देन जो ये फेगोसाइटिक वैक्यूल है ये किसी भी चीज के साथ अटैच हो सकता है, लेट एंडोसोम, अर्ली एंडोसोम और इवन देन द लाइसोसोम, ठीक है। दैट थिंग वी विल ड्रॉ हियर। एक तो ये प्रोसेस है जिसमें फेगोसाइटिक वैक्यूल बन रहा है। दूसरी प्रोसेस क्या है कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू, सो दिस इज द प्रोसेस which is known as endocytosis. So endocytosis के थ्रू क्या बना, एक अर्ली एंडोसोम बना। So this thing is the early endosome. Then this early endosome will change into late endosome. So this thing is the late endosome. क्यों ये late endosome कैसे बनेगा, जो early endosome बना है उसका कुछ पार्ट दोबारा क्या करेगा, कुछ हिस्सा वापस मेम्ब्रेन की ओर जाएगा और it will goes outside the cell through the exocytosis. So इससे कुछ इसका बाहर चला गया और उसके बाद जो चीज बनी, दिस इज द लेट एंडोसोम, ठीक है। ये क्या है, लेट एंडोसोम है। नाउ आई एम कंप्लीटिंग दिस सेल। क्लियर? सो हियर गोल्गी apparatus इज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज द गोल्गी apparatus. दिस थिंग इज गोल्गी apparatus जिससे क्या बन रहे हैं, वेसिकल्स राइज हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द वेसिकल्स एंड वी नो कि जो वेसिकल्स हैं
और जो एंडोसोम है, लेट एंडोसोम है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं. सो दीज टू विल चेंज इनटू लाइसोसोम. सो दिस इज द लाइसोसोम. सो प्रोसेस समझ में आया कि 3 प्रोसेस चल रही हैं. सबसे पहले क्या है, एंडोसाइटोसिस से एंडोसोम बन रहा है, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम. दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा गोल्गी अपरेटस है उससे वेसिकल बना. क्लियर. वेसिकल लेट एंडोसोम के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया, लाइसोसोम बना दिया. क्लियर. थर्ड इज कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स सेल के अंदर आए, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बनी जिसको हमने नाम क्या दे दिया, फेगोसाइटिक वैक्यूल या फिर फेगोसोम्स बोल देते हैं. ठीक है, जिसको जैसे इसको एंडोसोम बोलते हैं, इसको हम फेगोसोम बोलते हैं. क्लियर. सो दिस इज द फेगोसोम. अब ये फेगोसोम किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, अर्ली एंडोसोम के साथ भी, ठीक है, लेट एंडोसोम के साथ भी, या फिर लाइसोसोम के साथ भी. और क्या बनाएगा उसके बाद, अगर ये लाइसोसोम के साथ अटैच हुआ तो दिस विल चेंज इनटू डिजेस्टिव बॉडी. सो दिस इज द डिजेस्टिव बॉडी. क्लियर. अब इस डिजेस्टिव बॉडी में क्या होगा, डाइजेशन होगी थ्रू द एंजाइम्स. क्लियर है, इसमें डाइजेशन होगी. सो डाइजेशन होने के बाद जो मटेरियल बच गया दैट विल बी द रेजिडुअल बॉडी. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ द लाइसोसोम. वो भी हम करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट चेक किया हेट्रोजीनस में. सो हेट्रोजीनस में क्योंकि फेगोसोम्स हैं, एंडोसोम्स हैं, वेसिकल्स हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस टाइप बोलते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी ऑटोफेजिक लाइसोसोम, वो भी इसी में से समझ आ जाएगा. ठीक है, अब जो ऑटोफेजिक लाइसोसोम है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोफेजी. ठीक है, ऑटोफेजी मींस सेल्फ लिसिस, कि जब सेल खुद को ही खत्म करता है उसको हम ऑटोलिसिस बोलते हैं. ठीक है, या सेल्फ लिसिस बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस थिंग कि जो सेल है, दिस इज द सेल एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, ये सारा साइटोप्लाज्म है जिसमें ये सब हो रहा है. क्लियर. अब क्या है कि कोई ऑर्गेनेल है. सो लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज नॉट फंक्शनिंग वेल, या फिर इसकी जो एज है वो ओल्ड हो गई है. ठीक है, कि अब ये पुराना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच हैज टू बी डाइजेस्टेड, जिसको डाइजेस्ट करवाना है. ठीक है. सो अब क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बना देगा विच इज डबल लेयर मेम्ब्रेन. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके अराउंड डबल लेयर मेम्ब्रेन बना देता है. सो इट विल बी चेंज इनटू अ वैक्यूल. ठीक है, सो इसके अराउंड एक वैक्यूल बन गया. क्लियर. सो वैक्यूल में क्या आ गया, दिस ऑर्गेनेली. ठीक है, विच इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच हैज टू बी डाइजेस्टेड, जिसको डाइजेस्ट करवाना है. ठीक है. So this vacuole which is containing mitochondria or degenerating mitochondria is recognized by the late endosome. ठीक है. So अब late endosome इसको क्या करेगा, पहचान लेगा कि this thing has to be digested. Okay. So this thing, these both will be fused and will be changed into autophagosome. ठीक है. So इस चीज के साथ कोई भी रिएक्ट कर सकता है, late endosome भी एंड या फिर लाइसोसोम भी, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Then this thing will be digested by the lysosome or late endosome. Clear. And then it will be changed into digestive body. Clear. अब ये किस में चेंज हो गया, digestive body में. और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डिजेस्ट कर देंगे. ठीक है, उसको ये लाइसोसोम क्या कर देगा, डिजेस्ट करवा देगा. एंड द रेस्ट थिंग इज रेजिडुअल बॉडी. नेक्स्ट इज रेजिडुअल बॉडी. सो जब डिजेस्टिव बॉडी है उसमें जो भी डिजेस्टेड मटेरियल था जो काम का था वो सेल में पहुंच गया, साइटोसोल में. ठीक है. अब जो बचा है वो क्या है, रेजिडुअल बॉडी है. ठीक है. सो रेजिडुअल बॉडी मेनली कंटेन अनडिजेस्टेड फूड, जो डिजेस्ट अब नहीं हो सकता. क्लियर. जो ये अनडिजेस्टेड फूड है इसका क्या काम है, सो दिस इज द डेब्रिस और अनयूजफुल थिंग. सो इसको हमने क्या करना है, सेल से बाहर निकालना है. ठीक है. सो ये रेजिडुअल बॉडी अब क्या करेगी, सेल के बाहर इस डेब्रिस को निकाल देगी. ठीक है, थ्रू ईफेजी. इसको ईफेजी भी बोल देते हैं, या फिर दिस इज एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. सो नाउ वी विल डू फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम. सो फर्स्ट फंक्शन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. जो भी मटेरियल फेगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आता है सेल में, वी हैव डन विद दिस थिंग कि फेगोसाइटोसिस क्या होती है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आते हैं. ठीक है. सो फेगोसाइटोसिस से जो भी अंदर आता है दैट इज डिजेस्टेड बाय द लाइसोसोम. उसको जो लाइसोसोम क्या करता है,
डिजेस्ट कर देता है। सो दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जो मेनली हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, दे वर्क outside from their origin to do their work, so that is the extracellular digestion. Clear? That thing is also done by lysosomes. So next is body defense. So body defense में क्या है? So in body defense, like lysosomes of leukocytes, कि जो WBC हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स हैं, उसका जो लाइसोसोम है उसका काम क्या होता है कि जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, दैट फॉरेन पार्टिकल्स कैन बी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। सो जो सेल के अंदर एंटर करता है उसको एंटर करने से कौन चीज रोकती है? ल्यूकोसाइट्स के लाइसोसोम्स, ठीक है। सो बॉडी डिफेंस में भी लाइसोसोम का फंक्शन है। नेक्स्ट इज फोर्थ फंक्शन इज ऑटोफेजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोफेजी? ऑटोफेजी मींस ऑटोलिसिस या फिर सेल्फ लिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोलिसिस? कि खुद को ही खत्म करना, अपने सेल को, ठीक है। सो मेनली जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि जो टेल है फ्रॉग की, दैट इज डीजेनरेटेड ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ठीक है, कि फ्रॉग की जो टेल है वो डीजेनरेट कर जाती है, ठीक है। सो कैसे डीजेनरेट कर रही है? सो कैसे वो डीजेनरेट कर रही है? थ्रू द लाइसोसोम। फिफ्थ फंक्शन इज मेटाबोलाइजेशन ऑफ रिजर्व। सो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टारवेशन, कि जब खाना नहीं मिलता, ठीक है, सो उस पीरियड में क्या होता है? दिस लाइसोसोम हाइड्रोलाइज द रिजर्व फूड मटेरियल टू प्रोवाइड द फूड टू द सेल, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टारवेशन पीरियड। सो वो क्या करता है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देता है, ठीक है, बहुत जल्दी। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन इज इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग। इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग की जो लॉन्ग लिव्ड सेल है उनके अंदर की जो सफाई है वो कौन करते हैं? लाइसोसोम्स करते हैं। वी हैव डन दिस थिंग। जो लाइसोसोम्स हैं वो सेल में क्या करते हैं? उसका जो भी डेब्रिस है या रेजिड्यूल है सेल का, उसको बाहर फेंकते हैं, ठीक है। सो इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग इज डन बाय द लाइसोसोम। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पर्म लाइसिन। सो व्हाट इज स्पर्म लाइसिन? सो मेनली इन द स्पर्म एक्रोसोम, जो स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट है, मेनली इट कंटेन लाइसोसोम्स, ठीक है, उसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। सो व्हेन दिस स्पर्म गोज टुवर्ड्स द एग, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको डीजेनरेट करने के लिए तो लाइसोसोम है वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ यूजलेस सेल, कि जो यूजलेस सेल है या बोर्न आउट सेल है, ठीक है, उनको ऑटोलिसिस के थ्रू ये जो लाइसोसोम क्या करते हैं? डीजेनरेट करवा देते हैं, ठीक है। सो ओल्ड एंड यूजलेस सेल्स आर डीजेनरेटेड बाय द लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज कि जो रेजिडुअल बॉडी है, ठीक है, मेनली द फंक्शन ऑफ रेजिडुअल बॉडी इज टू कलेक्ट ऑल द डेब्रिस फ्रॉम द सेल एंड थ्रू इट आउट ऑफ द सेल, ठीक है, कि सेल के बाहर फेंकना है। बट सम टाइम जो रेजिडुअल बॉडी है वो सेल के अंदर ही रह जाती है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाती। सो दैट थिंग लीड्स टू स्टोरेज डिजीज। सो वो क्या करती है? स्टोरेज डिजीज कोज करती है, ठीक है। सो दीज आर सम पैथोलॉजिकल डिजीजेस। सो इन डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती है? हेपेटाइटिस, पॉक्स डिजीज, हर्लर डिजीज, टाइसेक्स डिजीज एक्सेट्रा। सो ये सारी डिजीज कैसे कोज होती हैं? बिकॉज जो रेजिडुअल बॉडी है वो सेल के अगर अंदर रह जाए तो, ठीक है। सो दीज आर द डिजीजेस। क्लियर। सो इन लॉन्ग लिव्ड सेल दीज रेजिडुअल बॉडी मे रिमेन इन द सेल, ठीक है, कि जो लॉन्ग लिव्ड सेल होते हैं, इन लॉन्ग लिव्ड सेल दीज रेजिडुअल बॉडी रिमेन इन द सेल, और जो जितनी भी रेजिडुअल बॉडी है ये सारी इकट्ठी होके एक वैक्यूल क्रिएट कर लेती है, ठीक है। सो एक कलेक्टिव वैक्यूल बना लेती है जिसका नाम क्या है? लिपोफस्टिन। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। सो जो सेल डिवीजन में माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। सो दिस माइटोटिक डिवीजन कैन बी स्टॉप्ड बाय मेनी फैक्टर। सो उन फैक्टर के ऊपर काम करके लाइसोसोम क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन को होने देता है, ठीक है। सो मेनली लाइसोसोम वर्क ऑन दैट रिप्रेसर्स व्हिच स्टॉप्स द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल, ठीक है, कि उन रिप्रेसर पे लाइसोसोम काम करता है, ठीक है, ताकि वो रिप्रेस ना कर सके माइटोटिक डिवीजन को। डन। नेक्स्ट इज जेनेटिक चेंज। सो व्हेन न्यूक्लियेसेस
विच इज एन एंजाइम कंटेन्ड इन द लाइसोसोम। जो लाइसोसोम एक न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है, अगर ये एंजाइम न्यूक्लियस पे वर्क करे, ठीक है, सो इट कैन बी डू दीज थिंग्स। जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ब्रेक कर सकता है, ठीक है, चेंज इन डीएनए, ये डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, म्यूटेशंस, सो इट कैन कॉज म्यूटेशंस इन द सेल एंड में ब्लड कैंसर इज आल्सो कॉज्ड बाय द लाइसोसोम। सो ब्लड कैंसर भी इसी के कारण हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्सिनोजेनेसिस। So this is the process in which carcinogens are engulfed and removed by the lysosome, ठीक है, कि कार्सिनोजेंस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है इन कार्सिनोजेनेसिस। बट इन सम केसेस इफ कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो फिर लाइसोसोम क्या करेंगे, जो लिविंग सेल है उनको भी साथ के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इफ कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, lysosome will work on the living cells and ultimately digest all the cells. Clear? Example is of fibrosis, ठीक है, which is caused by asbestos. So excess of asbestos leads to fibrosis. Done? Next is leukocyte granules are also formed by the lysosome. Lysosome बनाता है. And the last function of lysosome is osteogenesis. So what is osteogenesis? During the formation of bones, कि जब बोन्स की फॉर्मेशन होती है या फिर रिपेयरिंग होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो ओस्टियोक्लास्ट है, जो ओस्टियोक्लास्ट का लाइसोसोम है, इट वर्क्स ऑन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन। सो ये बोन की मैट्रिक्स पे काम करता है और किस में हेल्प करता है, बोन की रिपेयरिंग में या फिर न्यू बोन फॉर्मेशन में, ठीक है। सो जो पुराना मैट्रिक्स है उसको खत्म करके उसकी जगह नया मैट्रिक्स बनाना। सो दिस थिंग इज डन बाय द lysosome. So we have done with the thing lysosomes. In our next video we will learn about any other organelle of the cells. Thank you.